So welcome to the lecture 3 of web programming. So today we're going to discuss about JavaScript, Java server pages, and many more things. And this is the last lecture of web programming. So without any further delay, let's start. Okay. The first and the most important question is what are dynamic web pages? Important question. What are dynamic web pages? Dynamic web pages. What are dynamic web pages? Explain how. Explain how JavaScript, JS is JavaScript, can be used to create, can be used to create, used to create dynamic web pages, dynamic web pages. So what is the answer? Actually, dynamic web pages are web pages that can change and update their content in real time. ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें अपडेट कर सकते हो, ठीक है, तो बेस्ड ऑन यूजर इटरेशन, ठीक है, तो यूजर इटरेशन दे प्रोवाइड डेटा एंड दे कैन चेंज एवरीथिंग. सपोज दे आर अपडेटिंग द पासवर्ड, okay, then they are creating a new username, okay, everything. Example, these are small petty examples, okay. तो ऐसे करके क्या करेंगे, they can change and update their content, okay. Static web page में क्या होता है, display the same content for all users. Dynamic web can provide personalized and interactive experiences. जैसे मुझे यूजर यूट्यूब है, यूट्यूब मुझे डार्क थीम चाहिए, किसी को लाइट थीम चाहिए, किसी को कोई और थीम चाहिए, तो फिर दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू व्हाट दे लव, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस. So let me write it. Dynamic web pages can change, are web pages that can change and update their content in real time, based on user interactions, based on user interactions. ठीक है, डायनेमिक वेब पेजेस कैन प्रोवाइड, डायनेमिक वेब पेजेस can provide, dynamic web pages can provide personalized, can provide personalized can provide personalized and interactive experiences, होप आप लोगों को समझ में आ गया. और JavaScript क्या है? It is a powerful programming language. JavaScript is a powerful that is commonly used to create dynamic web pages. JavaScript is a programming language used to create dynamic web pages. होप आप लोग समझ में आ गए. ठीक है, आप कैसे करते हैं, ये क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट कैन बी एम्बेडेड विद एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ भी आप ये कर सकते हो. ठीक है, and executed by web pages to interact with the DOM model of a web page, allowing for dynamic updates and modification. मतलब क्या, जावास्क्रिप्ट को कैन embed with HTML documents, documents, and executed by web browsers, and executed by web browsers, to interact with the document object model of a web page. DOM already explained, of a web page, allowing for dynamic updates
एंड मॉडिफिकेशन। होप आप लोगों को समझ में आ गया। क्या होता है, वेब ब्राउजर से इंटरेक्ट किया जाता है विद द डॉम ऑफ वेब पेज, document object model allowing for dynamic web pages and modification. अब कैसे, how JavaScript is used to create handling, that we will discuss. JavaScript used to create dynamic web pages, DWP में लिखिए शॉर्ट में, ठीक है। by number one, event handling। अब इवेंट हैंडलिंग होता क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल वेरियस इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय यूजर एक्शंस। जिस तरह का एक्शन यूजर करता है उससे क्या होगा, उस तरह का एक्टिविटी वेब पेज शो करता है, ठीक है। such as button click, form submission, mouse movements and keyboard inputs। कीबोर्ड में इनपुट दिया या माउस में मूवमेंट किया या फॉर्म सबमिशन किया या बटन क्लिक, उसके ऊपर क्या होते हैं, एक्शंस ट्रिगर होते हैं। हाँ, by attaching event handlers for specific elements of the page, you can define custom actions or behaviors in response to the response events। जैसे मैंने फॉर्म को सबमिट किया, एग्जांपल ले, सपोज वी डिड फॉर्म सबमिशन, तो क्या होगा, वो एक दिखाएगा फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। माउस मूवमेंट करके कोई क्लिक किए तो दूसरे वेब पेज में जाने के लिए तो दैट कैन बी डन। कीबोर्ड में इनपुट किए यूजर आईडी पासवर्ड और एंटर कर दिए तो फिर यू कैन गो टू सम अदर वेब पेज। ओके, तो इस तरह के दीज आर ऑल द इवेंट्स दैट कैन बी हैंडल बाय डायनेमिक बाय जावास्क्रिप्ट। ओके, तो क्या क्या एक्शंस क्या क्या होते हैं, एक होते हैं बटन क्लिक, एक होता है फॉर्म सबमिशन, एक होता है माउस मूवमेंट, कीबोर्ड इनपुट, ठीक है। दीज आर these are the events, events triggered by user action, user action। ओके, अब उसके ऊपर क्या हो गया, एक्शंस होंगे, जैसे माउस मूवमेंट करे, कीबोर्ड इनपुट किए, जो भी किए, द वे आई एक्सप्लेन, तो इसी तरह से इवेंट हैंडलिंग होता है। नंबर टू, डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन, व्हाट इज दिस डॉम मैनिपुलेशन? तो क्या करते हैं वो डॉम, कैन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई द डॉम ऑफ ए वेब पेज विच रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ए पेज, ठीक है। डॉम क्या, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, डॉम क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज ये डिफाइन करता है, डिफाइंस स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ऑफ अ वेब पेज। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट एक्सेस एंड मॉडिफाई डॉम ऑफ ए वेब पेज, डॉम ऑफ ए पेज, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब जैसे यूजर आईडी पासवर्ड दिए और एंटर करते तो फिर क्या हो रहा है, वो डॉम ऑफ वेब पेज में यूजर आईडी पासवर्ड है, उसके बाद जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डालते तो फिर क्या होगा, वेब जब एंट्री करेंगे तो वेब पेज का एक अलग वेब पेज आ गया, ठीक है। तो वेर यू कैन एक्सेस ए लॉट ऑफ थिंग्स। और यदि रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड दिए तो फिर क्या होगा, इट वोंट गो, इट गो टू सम अदर पेज। तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो वेब पेज का प्रेजेंट है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चाहे आप उसको यूजर आईडी पासवर्ड देके एंट्री कर लो, या इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड तो क्या बोलेंगे, दैट रॉन्ग यूजर आईडी पासवर्ड से एक अलग वेब पेज खोलेगा, अलग स्ट्रक्चर होगा वेब पेज का। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। होप आप लोगों को समझ में आ गया। नंबर थ्री इज एजेक्स। अब व्हाट इज एजेक्स, एजेक्स इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एजेक्स एंड एक्सएमएल is a technique, it is a technique, it is a technique to, that enables web pages to, that enables
web pages to make HTTP request without reloading the enter page, without reloading the entire page. फिर रिलोडिंग होगा इंटरफेस तो क्या होगा, इट विल टेक टाइम। तो क्या विदाउट रिलोडिंग द इंटरफेस क्या होता है, तो आप हमारे दूसरा वेब पेज में ठीक है, we can make request to go to some other web page. Okay, JavaScript क्या करता है, JavaScript can be used to send these request receive responses in various formats. Okay, like JSON and XML क्या करता है, ये जो रिक्वेस्ट जो भेजने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये इट इज बीइंग सेंट थ्रू, इट इज सेंट बाय जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट is used to send this request, is used to send these requests, used to send these requests, receive responses in various formats, in various formats such as JSON और XML। होप आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद डायनेमिक कंटेंट जनरेशन, नंबर 4 इज डायनेमिक। ऐसे करके मैं सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। डायनेमिक कंटेंट जनरेशन, डायनेमिक कंटेंट जनरेशन क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन जनरेट डायनेमिक कंटेंट ऑन द फ्लाई। इट कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, प्रोसेस इट एंड सेट इनटू अ वेब पेज। तो ये ठीक है, दिस कैपेबिलिटी इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, डिस्प्लेइंग रियल टाइम डेटा, ठीक है, तो एंड बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस दैट रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट। ये जो डायनेमिक कंटेंट जनरेशन, ये एक्चुअली यूज कहाँ होता है कंटेंट जनरेशन, जैसे स्टॉक प्राइस। जैसे आप ये देखो, वेदर देखना चाहते हो, वेदर द 10 डेज का कमिंग 10 डेज का क्या वेदर होंगे, वो सब देखना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस आर ऑल डायनेमिक कंटेंट जनरेशन, बार बार अपडेट हो रहे हैं। वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया फीड्स, सोशल मीडिया फीड्स। तो ये सारे एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक कंटेंट जनरेशन। तो जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, कैन जनरेट डायनेमिक कंटेंट, जावास्क्रिप्ट कैन जनरेट डायनेमिक कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट। तो such important जावास्क्रिप्ट is। फिफ्थ इज फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन। अब व्हाट इज फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, जैसे यूजर्स क्या कर रहे हैं, ये यूजर इनपुट देते और वही फॉर्म्स बिफोर सबमिटिंग रिलेटेड टू ए सर्वर, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग कस्टम वैलिडेशन रूल्स एंड रिलेशनशिप्स यू कैन प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू यूजर्स, दे आर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सबमिटिंग इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा। जैसे आप अपने फॉर्म वैलिडेट कर रहे हैं, यदि सपोज यूजर आईडी पासवर्ड या सब इनपुट, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ, कोई एक इनपुट आपका इज नॉट गिवन, दैट इज मैंडेटरी, तो फिर क्या करेगा वो, ये वहीं पे रोक देगा, इट विल गिव एरर मैसेज बिफोर सबमिटिंग until you complete the web page, ठीक है, तो it won't go further। okay, that is a form validation। होप आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग तो फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म जब भरते हो, सपोज आपने एग्जाम फॉर्म भरा, कोई एक फील्ड रह गया, तो क्या होगा, इट वोंट सबमिट इट अनलेस यू कंप्लीट द फॉर्म। अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज़ों से ठीक है, क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों से जावास्क्रिप्ट क्रिएट्स डायनेमिक वेब पेजेस। वो आप लोग को समझ में आ गए। Now next question, next, if we start, what is the use of class selector? That is also very important. What is the use of class selector? What is this class selector? Explain the use of class selector. A question है, explain the use of class selector and ID selector
in CSS and HTML with example. ठीक है, तो क्या पूछ रहे, क्लास सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर होता क्या? तो क्लास सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट्स। क्लास को सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे मैंने कोई टाइटल लिखा, अब टाइटल का आपका टाइटल का बोल्ड होगा या इटैलिक होगा या उसका फॉन्ट चेंज होगा सब, तो यू कैन चेंज दैट थिंग। तो मतलब क्या, हम वी कैन स्पेसिफाई स्टाइल्स, ओके, टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, दैट इज ए क्लास सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर, ठीक है। वही वही इसी काम के लिए हम यूज करते हैं। The class selectors and ID selectors are used to target specific elements and apply styles to them. And apply styles to them. Okay, apply styles to them. आप किस तरह से, वो हम देखेंगे अभी। एक HTML फाइल, लेट मी क्रिएट HTML फाइल। HTML doc type HTML, उसके बाद HTML स्टार्ट कीजिए। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद हेड में क्या देना, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टू text CSS href, जिस वेब पेज से वो लेंगे, ठीक है, तो उसको वो कौन सी है, style.css, style.css, ओके। उसके बाद हेड को खत्म कर दो, हेड इज गॉन। नाउ बॉडी, अब हम लिखेंगे h1 id इक्वल टू टाइटल, हेलो इंडिया, ओके। देन p क्लास, पैराग्राफ क्लास इक्वल टू p क्लास, एक क्लास है जिसका हम सिलेक्ट इसको चेंज करेंगे, इक्वल टू कंटेंट, इक्वल टू कंटेंट, तो क्या लिखा, p क्लास इक्वल टू कंटेंट, दिस इज न्यू दिल्ली, स्लैश p, इसको देख लो, एक और p क्लास ले लो, इक्वल टू कंटेंट, कैपिटल ऑफ इंडिया, स्लैश p, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। अब स्लैश बॉडी, स्लैश html, द टेबल कोड इज ओवर। होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, CSS वाला विल डू, CSS, अब CSS ब्रैकेट में स्टाइल्स डॉट CSS, जो वो कॉल करेगा वहां से, ठीक है। CSS टाइटल
कलर ब्लू। देखो आप टाइटल को मैंने कलर ब्लू कर दिया। कंटेंट, नॉट कंटेंट, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, कलर रेड, कलर रेड। तो देखो इस तरह से, तो ये क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज, ये जो कंटेंट का ये हो गया, ये चेंजेस हो गए, और ये टाइटल का कलर ब्लू हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। वो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग WML का बात करेंगे, वर्डलेस मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज WML? व्हाट इज WML? डिजाइन WML प्रोग्राम, डिजाइन और WML प्रोग्राम। पहले WML यूज होता, अब यूज नहीं होते हैं। WML प्रोग्राम टू डिस्प्ले द प्रोफाइल, to display the profile to display the profile of an employee, having attributes, having attributes, employee ID, employee name, employee ID, employee name, employee age, employee age, and employee designation. ओके, तो ये क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको कैसे करेंगे, WML होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इसी में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। WML क्या है? इट इज ए वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये है XML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वायरलेस डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के लिए यूज होता है स्पेशली, पहले ये यूज होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय HTML5। ओके, इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय HTML5। तो लेट मी राइट इट, WML, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वायरलेस डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन। ओके, अब क्या होता है, इट इज रिप्लेस्ड बाय HTML5। अब क्या बोला, एक प्रोग्राम लिखने बोला, ठीक है। तो क्या बोला, व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम इन्होंने बोला, देख, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन लेके प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब WML प्रोग्राम यू कैन से, तब इसको हाउ टू राइट दिस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल, एम्प्लॉय प्रोफाइल, स्लैश टाइटल, स्लैश हेड। अब बॉडी स्टार्ट हो रहा है, ओके। बॉडी में पहले है H1, एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। इसके बाद हम टेबल स्टार्ट करेंगे,
टेबल में सारे डेटा रखेंगे। टेबल टेबल में टी आर इज टेबल रो, टी आर इज टेबल रो। ओके, अब टी एच एट्रीब्यूट, हेडर में क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे टेबल हेडर में। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, वो तो पहले लिखेंगे ना हेडर में, उसके बाद डेटा सारा एंट्री होता है। टी एच, उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। ओके, इसको क्या करेंगे, वैल्यू डाल के टेबल रो को क्लोज कर देंगे। फिर टेबल रो स्टार्ट हो रहे हैं, अब एंट्री करेंगे, वैल्यूज एंट्री करेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज दैट वी आर गोइंग टू एंटर, वन सेक, क्या वैल्यूज हमें एंटर करना है। एक करना है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, टीडी। ओके, एम्प्लॉय नेम, ये सारे एक्सप्लेन करूंगा, टीडी क्या होता है, लेट मी राइट इट। एम्प्लॉय नेम, टेबल टीडी को आप बोल सकते टेबल डेटा। ओके, एम्प्लॉय नेम स्लैश टीडी। ओके, टीडी दे दिए सुशांत, सुशांत स्लैश टीडी। ओके, उसके बाद टेबल रो क्लोज। ऐसे करके हम फिर टेबल रो स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉय एज टी आर, उसके बाद क्या करेंगे, टीडी में क्या करेंगे, एम्प्लॉय एज सिन, एम्प्लॉय एज स्लैश टीडी, उसके बाद टीडी, मैंने 30 एक वैल्यू दे दी स्लैश टीडी। तो ऐसे करके सबको देना, सब डालना, सारे वैल्यूज हमको एंट्री करने हैं। उसके बाद टेबल रो क्लोज, सच ए इजी। फिर टेबल रो लेके एम्प्लॉय डेजिग्नेशन पुट करेंगे, टीडी एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन स्लैश टीडी। उसके बाद टीडी, ये मैनेजर सपोज दे दिए, मैनेजर। ओके, स्लैश टेबल स्लैश बॉडी स्लैश एचटीएमएल, हो गया, बन गया ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉय प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यूजिंग इन, हाँ ठीक है, तो इज डिस्प्लेड यूजिंग एन एचटीएमएल टेबल स्ट्रक्चर, एचटीएमएल का टेबल स्ट्रक्चर को वाइज किया। ठीक है, तो दिस इज द वे इट इज रिटन। अब ये जो मैंने एचटीएमएल, एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूएमएल प्रोग्राम। ओके, तो डू नॉट वरी, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूएमएल प्रोग्राम। तो दिस विल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टू टेक, अब हम लोग जावा सर्वर पेजेस की बात करेंगे। हेयर द स्टेप्स, जब सर्वर के पेजेस की बात करेंगे तो उसमें एक कनेक्शन होगा, उसके बाद यूजर इनपुट होगा, उसके बाद आउटपुट होगा, जो सर्वर एक आउटपुट देगा। तो यही सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को थोड़ा डिस्कस करना है। दिस द स्टेप्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड, that would be required to verify the username, username, username and password entered by user, entered by a user on a login page, on a login page, on a login page, to the information stored, to the information stored on a, yeah, stored in a database, in a database using JSP, जावा सर्वर पेजेस। इसी से सारे समझने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो व्हाट विल डू, पहला एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, एक कनेक्शन बनाएंगे, एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन।
फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, एस्टेब्लिश और डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, अब क्या कैसे डेटाबेस कनेक्शन करेंगे? यूजिंग जेडीबीसी, यूजिंग जेडीबीसी। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा जेडीबीसी। ओके, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, यूजिंग जेडीबीसी टू interact with the database, to interact with the database. Number two, retrieve user input, retrieve यूजर इनपुट। जो यूजर ने इनपुट किया वो उसको रिट्रीव करेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों को रिट्रीव करेंगे। नंबर थ्री, प्रिपेयर सीक्वल क्वेरी, प्रिपेयर सीक्वल क्वेरी। ये कैसे? यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि एसक्यूएल क्वेरी फायर होगा। ओके, एसक्यूएल क्वेरी बनेगा, इसके बाद क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी। नंबर फिफ्थ, एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, उसके बाद कंपेयर द पासवर्ड, कंपेयर द पासवर्ड, जो पासवर्ड है, यदि पासवर्ड करेक्ट है तो एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। नंबर सिक्स, हैंडल ऑथेंटिकेशन रिजल्ट। ओके, नंबर सेवन, डिस्प्ले appropriate response, appropriate response। Display appropriate response। So this is the way this is the way it is being handled। okay, यूजर लॉगिन पासवर्ड इस तरह से हैंडल करते हैं। तो आप लोग को ये सारे स्टेप्स लिखने हैं या समझ दिमाग में डालने हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन भी होते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेएसपी। एक्सप्लेन व्हाट इज एन एक्सेप्शन, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? Exception in the context of JSP, in the context of JSP, how are exceptions handled? How are exceptions handled using JSP? Explain with the help of example. Explain with the help of an example। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेएसपी क्या है? सिंपल एक्सेप्शन क्या होता है? जेएसपी की बात नहीं, सिर्फ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या है? ठीक है, हैंडलिंग एबनॉर्मल कंडीशन, हैंडलिंग एबनॉर्मल कंडीशन, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अब एक्सेप्शन ड्यू टू एक्सेप्शन एबनॉर्मल कंडीशन, तो इसका क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब क्या क्या हो सकते हैं? एक एक रीजन एक होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी यूसेज, डेटाबेस कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी डेटाबेस कनेक्टिविटी इश्यूज, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस प्रॉब्लम्स, इनवैलिड इनपुट डेटा, इनवैलिड इनपुट डेटा, ये सब का वजह से इनपुट डेटा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये इसको हैंडल क्या करते हैं, जैसे जेएसपी कैसे करते हैं? यूजिंग द एरर पेज मैकेनिज्म। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग वही ट्राई और कैच ये सारी चीजें यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग। ओके, लॉगिन डॉट जेएसपी लिखते, लॉगिन डॉट जेएसपी, आई एम राइटिंग द कोड। ओके, जेएसपी हम क्या करेंगे? परसेंट एट द रेट पेज इज एरर पेज,
पेज इज एरर पेज, नहीं ये छोड़ दो, इसको इतना लिखने, इसे फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग दिमाग में रहेगा भी नहीं। फॉरगेट अबाउट दिस। मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, ये बात से स्टार्ट करता हूँ। ट्राई, ओके ट्राई। ट्राई में क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कोड टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, code to connect to the database and authenticate the user, and authenticate the user, वो ट्राई में आ जाएगा, ठीक है। और कैच में क्या होगा, कैच में क्या होगा, सीक्वल, क्योंकि सीक्वल तो क्वेरी पहले क्रिएट होगा फिर जनरेट होगा ना, फिर उसको यूज किया जाएगा। सीक्वल एक्सेप्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वही सीक्वल एक्सेप्शन ही हैंडल द एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, हैंडल द एक्सेप्शन, इसके बाद एक मैसेज जाएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे एरर मैसेज जाएगा, एरर मैसेज, यूजर नेम, पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड, एक मिनट मैं रॉन्ग पासवर्ड लिखूंगा, रॉन्ग पासवर्ड, ओके। अब डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, अब इसको तो भेजना पड़ेगा ना, डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट था और ये रिस्पॉन्स है, हमने रिक्वेस्ट किया था एंट्री करने का और रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो रिक्वेस्ट दिया उसके साथ क्या होगा, रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स इज दिस थिंग, दिया रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग पासवर्ड, ओके। अब क्या करेंगे, बंद कर दो, क्लोज कर दो, ओके। उसके बाद दिस इज द थिंग, तो ऐसे करके हम लोग हैंडल करते हैं, हैंडलिंग सबकी सेम है, सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज अलग हो सकते हैं, लेकिन हैंडलिंग इज सेम, ओके। अब मुझे WML हमने पढ़े थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ WML, जो पहले व्हाट इज द नीड, व्हाट वाज द नीड ऑफ WML, व्हाट इज द नीड ऑफ WML, ठीक है। एक्सप्लेन एनी टू एलिमेंट्स, और जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं वही एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ WML, that can be used, that can be used to input data। तो अब ऐसे क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ मार्कअप लैंग्वेज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, नंबर वन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, नंबर वन है लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्स मतलब मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड बैंडविड्थ कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो WML इज अ लाइट वेट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्टिमाइज फॉर दिस कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो WML इज अ लाइट वेट markup language, light, it is a lightweight markup language optimized optimized for optimized for limited processing power, memory and bandwidth b slash w bandwidth है ये, ठीक है। तो इसलिए हमें WML की जरूरत है। नंबर टू, स्मॉल स्क्रीन्स,
स्मॉल स्क्रीन में फिट करने के लिए WML की जरूरत है। ओके, स्मॉल स्क्रीन में तो पूरे कंटेंट को तो देख नहीं सकते जो लार्ज स्क्रीन में देख सकते हैं, तो उसको प्रॉपरली दिखाने के लिए क्या करते हैं, WML की यूज करते हैं। ओके, allows content allows content to be displayed allows content to be displayed effectively on मोबाइल स्क्रीन। इसके लिए हम यूज करते हैं। छोटे स्क्रीन में इफेक्टिवली कैसे दिखते हैं तो उसके लिए WML यूज कर सकते हैं। और दो एलिमेंट के बारे में पूछा है इन्होंने। one first two elements of WML. Number one event one event। ठीक है, तो इट हाँ, ठीक है, तो ये क्या कहता है, इट इज यूज्ड one event used to define actions define actions। इवेंट मतलब ये एक्शन होता है। इवेंट actions when a specific event occurs when a specific event occurs it is commonly used for it is commonly used for user input। बस हो गया, यूजर इनपुट। नंबर टू, ये वन इवेंट ये है, होप आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद इनपुट, सिंपल है कि इनपुट ले लो। इनपुट में क्या होता है, यूज टू क्रिएट इनपुट फील्ड्स फॉर यूजर इंटरेक्शन। होप आप लोगों को समझ में आ गया ये। अब देखते नेक्स्ट क्या है। अब दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमें जानना चाहिए, दैट इज explain the difference between explain JSP scriptlets, JSP tag and JSP directive। ठीक है, अब JSP स्क्रिप्टलेट क्या होता है, ये क्या है, थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ JSP। ये जो स्क्रिप्टलेट है, टैग है, JSP टैग और JSP डायरेक्टिव, दीज आर क्या है, थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म of JSP used for different purposes used for different purposes। ओके, अब स्क्रिप्टलेट किस लिए होते हैं, दैट लेट्स सी। नंबर वन, जावा स्क्रिप्टलेट, JSP स्क्रिप्टलेट यू कैन से। इसमें क्या होता है, यूज टू एम्बेड जावा कोड का हम डायरेक्टली एम्बेड कर सकते हैं, जावा कोड विथ JSP पेज। ठीक है, एंड दे आर enclosed within इसके अंदर हो गया। ओके, थैंक्स। इसके लिए हम JSP स्क्रिप्टलेट यूज करते हैं। ओके, अब JSP टैग, नंबर टू इज JSP टैग। JSP टैग किस लिए होते हैं, ऑल्सो नोन एज कस्टम टैग्स। हम टैग में चेंजेस भी कर सकते हैं, नोन एज कस्टम टैग। क्या करते हैं उसको, यूज्ड, इट इज अ वे
It is a way to extend the functionality, to extend the functionality of JSP by creating reusable components. उसका मतलब क्या है, जब पहले आपने एक प्रोग्राम किया जेएसपी में तो उसको उसका जो टैग्स है उसको आप चेंज कर सकते हो, टैग में थोड़ा चेंज करके दूसरे फंक्शनलिटी ला सकते हो, न्यू फंक्शनलिटी अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेएसपी टैग यूज करते हैं। नंबर 3 इज जेएसपी डायरेक्टिव। ये क्या होता है, दीज आर इंस्ट्रक्शंस। डायरेक्टिव इज इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस that provide additional information to the JSP container, to the JSP container, and control the behavior of JSP page। समझाता हूँ। अब क्या होता है, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, बीच में एक जंगल आता है, एक शहर से भी जा सकते हो, यू कैन गो बाई सिटी ऑल्सो, तो द रोड इज सेफ एंड यू कैन गो शॉर्टकट दैट इज थ्रू द जंगल। तो मुझे एक डायरेक्शन दिया गया, इफ यू गो थ्रू द जंगल डेकॉइट्स आर देयर, दे कैन लूट यू, ठीक है, दिया गया। तो फिर क्या हो रहा, मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मैं लॉन्ग रूट लूंगा विच इज सेफ, ओके। तो व्हाट हैपेंड, माय बिहेवियर इज चेंज्ड, मैं शॉर्टकट लेने की जगह लॉन्ग कट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। So in this way, JSP directive is in this way you can understand the JSP directive। वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम to accept the first, middle and last name, middle and last name of the students, and print them, ऐसा कोई क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट without further delay। JavaScript, आप where फर्स्ट नेम, एक सेकंड देखो जावेद, where करके स्पेस देना, where फर्स्ट नेम इक्वल टू prompt enter your first name। तो इनपुट मांग रही है, ठीक है, तो अंडरस्टूड, ऐसे करके इनपुट लेते हैं, enter your first name, where middle name equal to prompt enter middle name, where last name prompt enter last name, ओके। तो ये सारे यूजर इनपुट है, ठीक है। उसके बाद इनपुट देने के बाद उसको क्या करेंगे, प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग योर नेम इज प्लस फर्स्ट नेम प्लस थोड़ा स्पेस देंगे, ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्पेस, प्लस मिडिल नेम, फिर एक स्पेस दे दो,
प्लस लास्ट नेम। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, अंडरस्टूड। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट इज आल्सो वेरी इजी, द प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इजी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम HTML कोड भी लिख सकते हैं फॉर द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, ये यदि कर दो दिस इज मोर देन एनफ। तो दिस इज द थिंग। तो होप इतना से इतने में वी हैव कंप्लीटेड द होल टॉपिक, एंड दैट्स ऑल। थैंक